Good morning, students. Dear students, in our last class, we have already discussed about the transportation of substances across the plasma membrane. Today, we are going to discuss about the mechanisms of transportation. In our last class, we had talked about the homeostasis. So, some of the students they are asking me to explain once again this topic. Okay. मैं होम्योस्टेसिस के बारे में बात करता हूँ. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ सेल रिमेन कांस्टेंट इवन दो द कंडीशंस आउटसाइड द वर्ल्ड इज चेंजिंग. ओके. होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि बॉडी हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है. इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. दैट मीन्स इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल और इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ सॉल्ट्स. And the second factor is the temperature of the body or the temperature of the cell. These two factors are very much required to maintain the constancy inside the cell or constancy inside the body. Why it is required to maintain the homeostasis, or you can say why these conditions are required to maintain always constant. हमेशा इन कंडीशंस को मेंटेन रखने की क्यों जरूरत पड़ती है, या हम कहें कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना क्यों जरूरी होता है. स्टूडेंट्स, यू नो, for metabolic activities, there are number of enzymes required to maintain the active processes. Okay, but these enzymes they particularly work on specific concentration as well as at the specific temperature. So it is very essential and mandatory to maintain the specific conditions of salt concentration as well as the temperature. Okay, it is required to provide them adequate temperature or salt concentration to the working enzymes. Then only the internal metabolic activities will be followed. Okay, they will be carried out. Okay, that is why homeostasis is very much essential to maintain the cell alive. Okay, now we are coming on to the our topic, mechanisms of transportation. Dear students, for mechanisms of transportation we are having three transport systems. Okay, that is active transport system, passive transport system and bulk transport system. In active, by the name itself it is denoting, ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन या एनर्जी का डिसिपेशन होता है. ओके. Why energy is required in this process? Because the, you know, plasma membrane is always having the pores. Okay, so it is able to let the small particles to move outside the world as well as to enter from outside the world into the cell environment. Okay, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्ट से इजीली पास थ्रू नहीं हो पाते हैं. सो दे रिक्वायर द एनर्जी टू लेट द बिगर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इजीली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस नीड्स अ एनर्जी. So active transport utilizes the energy, and it is also a slow, active process. That means it's a less time taking process. Okay, now we have to move further on passive transport. In passive transportation, it's a slow process. Okay, and it does not require the
यूज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। थ्रू दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द सेल एंड द सराउंडिंग मीडियम इज डेवलप्ड और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज पासिंग पर यूनिट एरिया एट अ पर यूनिट टाइम। ओके, तो पर यूनिट टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कंसिडर्ड जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। ओके, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन of the particular type of molecules at a particular point are higher and they are flowing per unit time is higher. That means its concentration is, the concentration gradient is higher. Okay, now passive transportation involves two processes, two transport processes. What they are? They are diffusion process as well as the osmosis process. Okay, in diffusion what do we see? It is defined as the process of movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration across the membrane. डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन के सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी add a drop of ink in water, what do we see? Gradually ink molecules or ink particles, they are dissolving in the whole solvent, whole water contained in a beaker or utensil. Okay, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रेगरेंस स्टिक की जब हम बात करते हैं तो हम कहीं कमरे में लगाते हैं फ्रेगरेंस स्टिक को और उसे बर्न करते हैं। तो फ्रेगरेंस स्टिक पर जब हम उसको जलाते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एट द पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर वो बर्न कर रही है और वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द रूम और इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में उसके मॉलिक्यूल्स नहीं है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस। Osmosis is a process in which the solvent molecules, in a solution there are two components, solvent as well as the solutes. किसी भी solution के दो parts होते हैं, दो components होते हैं, एक solutes होता है और दूसरा solvent होता है। ठीक है, solute में impurities होती हैं। ओके, solid part को हम solute बोलते हैं और लिक्विड पार्ट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व किए जाते हैं। दैट इज वाई द डिसॉल्विंग मटेरियल इज नोन एज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच इज हैविंग द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सॉल्वेंट। ओके, so in osmosis
the solvent molecules from its higher concentration move towards the concentration of its lower region. ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट दो कंडीशंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, ओके, और दूसरा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तभी मूव करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज ऑल्सो कंसिडर्ड. ओके, अब कैसे? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तभी मूव करता है जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के रीजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन है. तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम इट्स हायर रीजन to its lower region but towards the higher concentration of the solute particles. okay, solute के particles जहाँ पर जिस तरफ ज़्यादा हैं उसकी तरफ solvent के molecules मूव करते हैं. ठीक है, और solvent के molecules तभी मूव करेंगे जब solvent के molecules का concentration ज़्यादा है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर रीजन टू द लोअर रीजन, बट it takes place through the plasma membrane and from the region of lower concentration of solute towards the higher concentration of the solute particles. Okay, this is all about the osmosis. Now the examples of diffusion as well as the examples of osmosis. डिफ्यूजन के लिए आप डेली नंबर ऑफ एक्टिविटीज देखते हैं आपकी बॉडी में. आपको मालूम है, या हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अमीबा इज ऑल्सो रेस्पायरिंग. ओके, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन एज वेल एज द carbon dioxide. So when an organism needs oxygen, that means जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है. जब ऑक्सीजन की कमी है दैट मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और वो आउटसाइड द वर्ल्ड से ऑक्सीजन को ग्रैब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा या टेकन करेगा. ठीक है, तब आउटसाइड द वर्ल्ड ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेशन हायर होने की वजह से सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एंड इट फॉलोज द डिफ्यूजन प्रोसेस. लाइकवाइज इन CO2 also, diffusion of CO2 also, ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर, ठीक है, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड. ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो आउटसाइड द वर्ल्ड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कम है. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाते हैं through the plasma membrane, and this process is called the diffusion. Okay, now when we are dissolving, another example, when we are dissolving any substance in a medium, that is only possible through the diffusion process. जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट पार्टिकल्स में या सॉल्वेंट मीडियम में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो तभी पॉसिबल होता है जबकि डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है. ठीक है, और एक एग्जांपल हमने देखा था कि फ्लो ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स और फ्लो ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक. ओके, अगरबत्ती का जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेग्रेंस का, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऐसे ही फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो उनकी फ्रेग्रेंस और एरोमा एनवायरनमेंट में फ्लो कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है, देन इंसेक्ट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। ठीक है, सो द पॉलिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड गटेशन, दे दीज प्रोसेस इन्वॉल्व द डिफ्यूजन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स वाटर को अपने पोर्ट से, स्टोमेटल पोर्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड द वर्ल्ड रिलीज करती हैं। ओके, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ड्यूरिंग द night time or during the low temperature time, leaves they release the excess water through the pores of leaves. Okay, तो क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने का प्रोसेस गटेशन कहलाता है। तो इस प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन में और गटेशन में डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो होता है। Then another example is there, respiratory gases like oxygen and CO2. They are being exchanged with the help of this process of diffusion. Okay. Now the osmosis is divided into two processes, endosmosis and exosmosis. एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि ऑस्मोसिस के ही प्रोसेस हैं। ओके, एंडोस्मोसिस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, इट अकर्स व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर एंटर इनसाइड द सेल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। इट अगर्स व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। जब मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम होता है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट दे आर मूविंग across the semi-permeable membrane as well as towards the concentration of higher solute concentration towards from the lower concentration of solute. Okay, and in exosmosis there is another process. In this process the solvent molecules are moving from inside to the outside world or towards the solution. In this process the solvent molecules or water molecules semi permeable membrane से हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जिस तरफ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बाहर की एनवायरनमेंट में, ठीक है, सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द concentration of solute inside the cell, then higher concentration of solute particles are moving from inside the cell towards the lower concentration of solute towards the higher concentration of solute. ठीक है, तब ही एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्सोस्मोसिस कौन से टाइप के सॉल्यूशन में होता है? एक्सोस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। और एंडोस्मोसिस कौन से सॉल्यूशन में होता है? एंडोस्मोसिस हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही पॉसिबल होता है। नाउ सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ
isotonic solution, hypotonic solution, and hypertonic solution. What is isotonic solution? Isotonic solution कौन सा solution होता है? It is a solution in which solutes and solvents have same concentration as that of the cytoplasm of the cell. साइटोप्लाज्म के अंदर का जो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अगर हम 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन में ह्यूमन आरबीसीज को डिप करते हैं तो आरबीसीज के शेप और साइज में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है. वाई? बिकॉज द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with respect to the cell solution. Okay, now in hypotonic solution, hypotonic solution में क्या होता है कि solution in which the solvent concentration is high and solute concentration is low as compared to the cell cytoplasm. hypotonic solution में solvent के molecules का concentration outside the cell ज़्यादा होता है as compared to the concentration of solvent particles, solvent concentration inside the cell. And the second condition is the solutes concentration is lower inside the solution. Solutes concentration is lower inside the solution as compared to the solutes concentration inside the cell. ठीक है, सेल के अंदर सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इनसाइड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स को अगर रखते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन सेल्स व्हेन दे आर केप्ट बिलो 0.9% salt solution, below 0.9% of salt solution, then they swell up because they are kept in hypotonic solution. That means concentration of solute is lower inside the solution, but the concentration is higher inside the cell. So there will be endosmosis process followed. Okay, in hypertonic solution is having the higher concentration of solutes as well as solvent concentration. Hypertonic solution में solutes hypertonic solution is the solution in which solvent concentration is low and solute concentration is high. Hypertonic solution में solute का concentration solution में ज़्यादा होता है as compared to the solute concentration inside the cell. ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का concentration हमेशा कम होता है as compared to the solvent concentration inside the cell. ठीक है, अगर हम ह्यूमन आरबीसीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1.3% salt solution is hypertonic for the human RBCs. Human RBCs के लिए 1.3% salt solution is hypertonic. That means in this salt concentration RBCs will squeeze, RBCs सिकुड़ जाएंगी and they will die after some time. Okay, so this process endosmosis and exosmosis is regulated by the salt solution. Okay, now osmosis is observed in daily life. Number of phenomena are there. Okay, we can see number of examples in our daily life activities or life processes. What they are, we can discuss some of them. Number one, root hair of plants absorb water. आप सभी को पता है रूट हेयर
वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, बट दिस प्रोसेस इज फॉलोड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस की हेल्प से ही रूट हेयर वाटर के मॉलिक्यूल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ऑल्सो प्लांट सेल्स गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट की सेल्स भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। द सेकेंड प्रोसेस, transpiration, that occurs at the leaf lamina of plants through the osmosis and diffusion. We have already took this as an example of diffusion. Okay. In osmosis, the osmosis helps to maintain the turgidity of the cell. Then gain of water and removal of waste. वाटर को गेन करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए सेल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉलो द ऑस्मोसिस। ओके, देन डिफरेंसेस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, एक हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार में। First one is the movement of solvent molecules occurs in case when there is a concentration gradient between the two regions. Okay. Whereas in diffusion, the movement of solute particles, solid, liquid, or gas occurs. Okay. When there is a concentration gradient between the two regions. Okay. ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है, बल्कि डिफ्यूजन में सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स एंड गैसियस पार्टिकल्स दे ऑल मूव। ओके, दैट मीन्स द सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव ड्यूरिंग द process of diffusion, but in osmosis only solvent molecules move, okay, through the plasma membrane. The second point is it occurs through the semi-permeable membrane only. In osmosis, the semi-permeability of the plasma membrane is characteristic feature required. Okay, but in diffusion, it occurs without the semi-permeable membrane. Okay, डिफ्यूजन के लिए ऐसी सेमी परमिएबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज डिफ्यूजन वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स फ्लो ऑफ द हायर concentration of the material towards the lower concentration of the material. Okay, osmosis occurs only in liquid medium. osmosis हमेशा liquid medium में होता है, but diffusion may occurs in solid as well as in gaseous media. Solvent concentration does not get equalized. Solvent concentration equalize नहीं हो पाता है osmosis में, ठीक है, osmosis के process में solvent का concentration equalized नहीं होता. The concentration of substance becomes uniform in diffusion. Diffusion में substance का concentration uniform हो जाता है after some time. Okay, this is all about the differences between the osmosis and diffusion. Okay, now we have to move further on the third process of transport, that is the bulk transport. Okay, bulk transport says that the large amount of material is transported across the plasma membrane of the cell at the expense of energy. Okay, जब large amount of material को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन या बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं. When large amount of material is transported across the plasma membrane of the cell at the expense of energy, और इस प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है.
तो इस प्रोसेस को हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सच मटेरियल इंक्लूड्स लिपिड मॉलिक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एसेट्रा. और लिपिड मॉलिक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स या फिर दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द बिगर स्ट्रक्चर of the molecules as well as they are required to pass through the plasma membrane in huge amount. That is why this bulk transportation takes place. The bulk transport of materials occurs by folding of plasma membrane to form carrier vesicles. कैरियर वेसिकल्स का निर्माण कर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स. ये बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स तभी होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर फोल्डिंग के रूप में डेवलप हो जाती है और इन फोल्डिंग से वेसिकल्स टूट कर बनना शुरू कर देते हैं और ये वेसिकल्स सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि मटेरियल स्टोर होता है और मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इनसाइड द सेल एंड from inside to the outside world and from outside world to the inside world of the cell. Now the process of endocytosis and exocytosis. When the material is carried from outside world towards the internal environment of the cell with the help of vesicles, okay, then this process is known as endocytosis and the carrier vesicles are known as endosomes. जब हम देखते हैं कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो सेल के अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होता है और ये स्ट्रक्चर्स वेसिकल्स होते हैं जिनको हम एंडोसोम्स कहते हैं और ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है. ओके, नाउ द एक्सोसाइटोसिस. व्हेन द मॉलिक्यूल्स और एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टुवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड या सेल के अंदर से सेल के बाहर अगर किसी टाइप का सब्सटेंस हमें कैरी करना होता है या भेजना होता है, ओके, तो स्पेशल टाइप के कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये प्रोसेस फॉलो होता है एंड दे आर नोन एज एक्सोसोम्स. एक्सोसोम्स की हेल्प से होता है और इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस. Now, types of endocytosis. For endocytosis, there are again two different types, pinocytosis and phagocytosis. In endocytosis, the cells are able to transport the substance material from outside world into the cell, ठीक है, with the help of vesicles. vesicles की help से आउटसाइड द वर्ल्ड से सब्सटेंस या फिर रिक्वायर्ड मटेरियल को सेल इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करा लेती है. ये प्रोसेस हमें एंडोसाइटोसिस बताता है. नाउ एंडोसाइटोसिस के दो प्रोसेसेस होते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस इज द नॉन स्पेसिफिक इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेल नॉन स्पेसिफिक मटेरियल को या फिर सेल के बाहर से जो कि नॉन स्पेसिफिक है, जो इसे सेल जानती भी नहीं है, उस तरीके के मटेरियल को सेल फ्लूइड के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में आउटसाइड द वर्ल्ड से एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, सेल को कह सकते हैं सेल इज एबल टू ड्रिंक और एबल टू परफॉर्म द पिनोसाइटोसिस. और इस प्रोसेस को
हम ड्रिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं सेल का, ठीक है। एंड इन this process that is observed in amoeba, whereas the phagocytosis, the process of intake of solid particles through cell membrane and is known for eating, uh, and this process is also known as phagocytosis, ठीक है। सॉलिड मटेरियल्स को या पार्टिकल्स को सेल के अंदर सेल द्वारा टेक इन कर लेना कहलाता है ईटिंग कहलाता है या फैगोसाइटोसिस कहलाता है।